Please welcome Dr. V.K. Agarwal, sir, now the chairman of SRK Group. Now I would like to call upon stage Dr. Vasudha Damle ma'am, Professor of Ophthalmology Department, to felicitate Dr. V.K. Agarwal, sir. Now proceeding the program further, we'd like to request our esteemed guests and faculty members for lamp lighting ceremony. The lighting of the lamp marks the beginning of the sacred ceremony. कैंडल उधर हाँ जला दो जाऊँ ना साथ में फिर वहाँ पे होता है क्यों आ रहे हो आप जला के दो बेटा आई आई ये इसको लीजिए Now we'd like to call upon stage the students of 2023 batch who have prepared the Saraswati Vandana as an attribute to the goddess of knowledge.
Now I would like to call Dean of RKTF Medical College, Dr. Hemant Gadekar sir, to address us all with his wise words. Thank you. Honorable Dr. Sir, sir, Honorable Chairman, sir, respected dignitaries on the dais, respected invitees, my colleagues, students, and their parents. I welcome you all to the orientation program and white coat ceremony UDAY 2024. The student orientation program for undergraduate students admitted at RKTF Medical College Hospital and Research Center in the batch of 2024. I congratulate you all for securing admission to one of the best medical colleges in Madhya Pradesh. RKTF Medical College, affiliated with Sarvapalli Radhakrishnan University, is the flagship institute of RKTF Group. RKTF is the largest academic group in central India with over 3 medical colleges, 300 institutes and 6 universities, and still growing, all under the able and visionary mentorship of our beloved chairman, Honorable Dr. Sunil Kapoor sir. With the blessings of our founder director, late Shri R.N. Kapoor and Mrs. Janak Kapoor, RKTF Medical College was started in 2014 with a permission of 150 MBBS seats. 2 of our batches have completed their MBBS course, and most of them are pursuing their post-graduation in various prestigious medical colleges, including AIIMS and PGI Chandigarh and universities abroad. Proud to say that 2 of our lady students are offering their services in paramilitary force and Indian Air Force. With the immense efforts put in by our respected director, Mr. Siddharth Kapoor sir, we were able to get permission to start post-graduation courses with 80 PG seats in 18 disciplines, and today we will be having the 3rd batch of PGs with our institute. However, today is not the day of teachers, institution, or dignitaries or any celebrity. Today is the day to celebrate the initiation of a fresh generation of healers who have meritoriously earned their place in the genre of future healers and prominent stakeholders of the responsible citizen of this country. Today I am addressing the newly inducted undergraduate students of medical science exclusively, and also their parents. Dear young colleagues, life has taken a huge turn since your admission. Till yesterday, you all were young kids to your parents, taken well care of at home. Every day you used to wake up, there was a father to pay your bills, to protect you each moment. Every day you woke up, there was food on the table of your choice, thanks to your mother. You never had to think about laundry or stacking up bread or toothpaste, again thanks to your mom. And today you are here. Unknown roommates, mess food, sweeping your room yourself, washing your own clothes, huge syllabus, draconian teachers, seniors breathing on your neck. Life suddenly turns eventful. Though much has already been informed during previous session of the orientation, I would like to add an important paradigm to this. For the next 4.5 years of graduation or 3 years of post-graduation, the learning process is already very well structured. Teachers know how to lead you step by step to your desired competencies, wherein each one of you shall eventually come out as a competent Indian medical graduate and a specialist. Are we just going to be a degree holder, or are we going to cause a change in the society? Do we want to heal the man, or do we want to heal the mankind? That is the question we need to answer ourselves on day 1, today. Let me give you a small story which is very close to my heart, and I never miss a chance to mention it. 50 years ago, in early 70s, a young man from middle class family in Punjab
got admission for MBBS, and he did his post-graduation in pediatrics. Eventually, that young doctor landed up in Bhopal with his wife, Dr. Sadhana Kapoor, a gynecologist, and two small kids, Siddharth and Shruti. They started practicing on the outskirts of Bhopal. Looking at their commitment to the patients, they used to have an OPD of around 400 patients, morning as well as evening. Good way to live by all standards for a doctor even for today. But this man was visionary. Instead of minding his personal fortunes, he chose to change the life of millions of young Indians by offering them affordable and quality education. He worked day and night for his dream, and in less than 30 years, here we see the maverick through 300 colleges and 6 universities, the only group in central India having 3 medical colleges and more to come up, giving purpose to the lives of millions of students. None other than, ladies and gentlemen, our respected chairman, Dr. Sunil Kapoor sir. He has etched his name in history as a doctor coming from nowhere with a magic wand of compassion and hard work, painting rainbow of hope for everyone. The reason behind sharing this story is not only to recognize him, but also to learn from him. It is easy for anyone to earn and feed his own family. Do you have it in you to feed your dreams? Alone, you may reach heaven, but together we can raise the level of hell. The journey from the chair you are sitting now to this dais may be filled with a lot of hard work, some failures and 100 pitfalls. But I hope these lighthouses would definitely guide you to your dreams through his words and action. Once again, on behalf of management and my colleague faculty, I welcome you all to RKDF Medical College, Hospital and Research Center. I take due honor and privilege to invite our beloved chairman, Dr. Sunil Kapoor sir, to kindly come here and guide us through his blessings. Dr. Sunil Kapoor. मेरे प्रिय भाई, परिवार के सदस्य, इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट डॉक्टर भरत शरण सिंह जी, हमारी सिंगल मैन आर्मी के मुखिया डॉक्टर वीके अग्रवाल जी, 35 साल से मेरे प्रिय मित्र डॉक्टर आर.एस. गुप्ता जी, फैकल्टी मेंबर और प्रिय दोस्तों, व्हाइट कोट सेरेमनी में आने में मुझे बड़ी खुशी होती है। 76 में मैंने जब एमबीबीएस में एडमिशन लिया, एक गरीब परिवार का बच्चा जब उसको एडमिशन मिलता है तो सपनों की दुनिया में रहता है। व्हाइट कोट पहना, सेरेमनी हुई तो लगा कि ये क्यों बना दिया। पहली बार उस व्हाइट कोट की अहमियत मुझे पता चली जैसे ही हमने वार्ड में जाना। पेशेंट, उसके रिश्तेदार, माई बाप सब हाथ जोड़ के खड़े रहते थे कि हमारे बच्चे को बचा लो, हमारे पिताजी को बचा लो, हमारी मां को बचा लो। डॉक्टर से अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है। कोरोना में हमने देखा बड़े बड़े आदमी मुझे सिर्फ इसी बात के लिए रिक्वेस्ट करते थे कि एक डॉक्टर को भेज, एक डॉक्टर मुझे देख जाए। आज ये व्हाइट कोट सेरेमनी के बाद आप सबका दर्जा पेशेंट की नजर में और दुनिया की नजर में भगवान का दर्जा होगा। लोग पेशेंट ऑपरेशन थिएटर के बाहर जब पेशेंट के रिश्तेदार और परिवार खड़ा होता है, जैसे ही आप निकलते हैं बाहर कि सर आपने बचा लिया, हजारों दुआएं मिलती हैं।
उस जमाने में कोई और एंटरटेनमेंट का साधन नहीं होता था, तो हम व्हाइट कोट पहन के सिनेमा हॉल चले जाते। सबसे अलग लाइन व्हाइट कोट वालों की होनी, सबसे ज्यादा इज्जत व्हाइट कोट वालों को मिलनी। यदि आप ट्रेन में बैठे हो, आपने कहा मैं डॉक्टर हूं, तो कोई ना कोई आ जाएगा, सर देखिए मेरे यहाँ पेट में दर्द होता, देखना सर मेरी हार्ट में बीट मिस होती है। हर आदमी एडवाइस के लिए तत्पर रहता है। जब मैं भोपाल आया तो मेरे पास भी कुछ नहीं था, एक ही चीज थी, व्हाइट कोट और स्टेथोस्कोप। वो मेरी ताकत थी। गाडेकर साहब ने जरूर बताया 400 रुपए लेके भोपाल आया था, पर व्हाइट कोट ने मुझे वो ताकत दी, कोई अंदाजा नहीं था। भोपाल से 20 किलोमीटर दूर प्रैक्टिस करने जाता था, ट्रक पे बैठ के किसी भी ट्रक वाले से लिफ्ट ले लेनी, पर व्हाइट कोट हाथ में हो। ट्रक वाले ने कहा सर पैसे नहीं दीजिए, आप उतर जाइए, अपनी जगह पे मुझे पहुंचा देते। पेशेंट इतनी पूजा करते थे, गांव था मंडी जी कुछ वक्त, आते वक्त उन्होंने 1 किलो घी ले आना, लौकी ले आनी कि साहब देखो मेरे बच्चों को बचा लिया। बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती थी। सवेरे 6 बजे मैं प्रैक्टिस स्टार्ट करता था, रात के 11 बजे तक प्रैक्टिस करता था। सपना जरूर देखता था। गरीब आदमी क्या कर सकता है, सपना देख सकता। मैं भी रोज सपना देखता था। पहले बंद आंखों में सपना देखता था, अब खुली आंख में भी सपना देखता। रोज शीशे के सामने खड़े होकर जरूर मैं कहता हूं कि मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं, मेरे से ज्यादा समझदार कोई नहीं, मैं राज करने के लिए पैदा हूं। यही आप सबको कहना है कि आपसे ज्यादा कोई इंटेलिजेंट नहीं है, आप सब राज करने के लिए पैदा हुए। मिशन सोचा हुआ था। गांव के एक स्कूल में मैं पढ़ता था। 4 किलोमीटर पहाड़ी पे चढ़ के एक लकड़ी की फट्टी, एक दीवार और एक शीशी में शाही डाल के ले जाना, अपनी बोरी साथ ले जाना। बोरी से पहले गोबर से उस मिट्टी को साफ करना, बोरी बिछाना। छोटे छोटे परिवार के थे। स्कूल में जो मास्टरानी थी, 12th की 12वीं क्लास पढ़ी होगी या BA पढ़ी होगी, उसने जब 6th क्लास पास हुई तो हर बच्चे से पूछा कि आप क्या बनोगे। किसी ने कहा नर्स बनूंगी, किसी ने कहा मास्टरानी बनूंगी। हर एक आदमी का अलग अलग सपना था। जब उसने मेरी पर्ची खोली तो जोर से हंस पड़ी। बोले आपके पिताजी क्या करते हैं? मैंने कहा वो क्लर्क है बैंक में। बोले आपने लिखा कि आप टाटा को बीट करना चाहते हैं। सपना था कि टाटा को बीट करना, ऐसा नहीं था। टाटा तो आइडियल थे, उनसे अच्छा कोई उद्योगपति नहीं, उससे अच्छा कोई इन्वेस्टर नहीं, और उनसे अच्छा कोई फिलेंथ्रोपिस्ट नहीं। सपना जरूर देखा। वो सपने आपको भी देखने, आपको भी बताना है कि आपसे बढ़ के कोई नहीं। RKDF का मतलब है रामकृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन। भगवान राम इस कॉलेज में रहते हैं, इसलिए इस कॉलेज को कभी कोई तंग नहीं कर सकता। दूसरी बात, 3 मेडिकल कॉलेज सपना नहीं है। यह भी नहीं है कि 1000 मेडिकल कॉलेज हो। भरत शरण सिंह जी मेरे साथ है। मेरी गाड़ी 11 साल पुरानी है, गियर में चलती है, धीरे धीरे चलती है, पर मुझे बड़ी खुशी होती है उस गाड़ी में आने की। ये जरूर मैं आप लोगों को सारे आशीर्वाद देना चाहता हूं कि ऐसा डॉक्टर बनो कि लोग आपके सामने लाइन लगा के खड़े। लोग स्टेथोस्कोप रखते हैं पर मरमर सुनाई नहीं देती 90% डॉक्टरों को। डॉक्टर जितेंद्र जैन बैठे मेडिकल के हेड हैं, नहीं देती सुनाई देती। क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े, प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़े। मैं 3-3 घंटे हार्ट पे स्टेथोस्कोप लगा के मरमर सुनाई देने की कोशिश करना, पता लगना कि हार्ट बीट मिस होती कि नहीं होती। लोग टेस्ट लिख देते हैं, CT स्कैन कराओ, MRI कराओ, कलर ड्रॉप कराओ। हमारे जमाने में कोई टेस्ट नहीं होता था। पल्स और स्टेथोस्कोप, उसी से ही सब देखना होता था। एक एक्सरे होता था 100 mA का, जिसमें कुछ दिखता नहीं था। आज
पेशेंट आता है, डॉक्टर पहले लिस्ट बना देता है। आपको वैसा डॉक्टर नहीं बनना है। पल्स देखिए, दोनों हाथ की पल्स देखिए, बीपी खड़े होकर अलग नापिए, बैठ के अलग नापिए, और स्टेथोस्कोप का उपयोग करिए। लोग घुटनों में भी स्टेथोस्कोप लगा देते हैं, पता नहीं होता कि स्टेथोस्कोप कहाँ लगता है। ये सब चीजें आपने देखनी है। सपने जरूर देखते हैं। जो लोग अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको लगना चाहिए कि मैं मेदांता से ऊपर बड़ा हुआ डॉक्टर बनूं, देवी दत्ता से अच्छा बनूं, देव पुजारी से अच्छा बनूं, या हिंदुस्तान में मेरा कोई मुकाबला ना हो। आपके यहाँ बड़ी अच्छी आई स्पेशलिस्ट है डॉक्टर वसुंधरा दामले, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। डॉक्टर ये जो सुमैया हैं ऑर्थोपेडिक्स के बेस्ट डॉक्टर हैं, बट आपके पास बड़ा अच्छा स्टाफ है। इन सब के साथ सब कुछ सीखना है। 1 घंटा डॉक्टर अच्छा पढ़ा दे तो सब चीज़ें ठीक में आ जाती है, सब चीज़ आ जाती है। मेरे ज़माने में हमारे ज़माने में हाउस जॉब होती थी, अब इंटर्नशिप के साथ पीजी हो जाती है। 6 महीने मैंने आर्थो में हाउस जॉब की, 6 महीने पीडियाट्रिक्स में की। आर्थोपेडिशियन जिसके पास हाउस जॉब की, डॉक्टर NS अग्रवाल, उसने 7 दिन के बाद कह दिया कि आप आर्थोपेडिशियन अच्छा नहीं बन सकते, आप में वो ताकत नहीं है कि बड़ी बड़ी फीमर को सीधा कर सकते। मैंने चेंज कर ली लाइन, पीडियाट्रिक्स में आ गया। पर जब यहाँ प्रैक्टिस स्टार्ट की, 6 महीने में बड़ा काम किया था, सारे प्लास्टर लगा लेंगे, सब काम कर लिया। प्रैक्टिस मेरे 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, आखिरी में गिरने वाली हालत में होती थी, तब प्रैक्टिस वाली। छोटा सा एक कॉलेज खुला 95 में। अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्टाफ इतना अच्छा है। 25 साल 20 साल से कम कोई नहीं है यहाँ पे। जो है वो दिल से है। मेरा भी बहुत ज्यादा दिमाग काम नहीं करता, पर दिल बहुत अच्छा काम करता है। कभी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने शायद एंटरप्रेन्योर नहीं बना, वही एंटरप्रेन्योर बनता है जो दिल से सोचता है। हर जगह नया प्रोजेक्ट, नई सोच। मैं सर से अभी कह रहा था, हमने एक मारुति का शोरूम खोला पिछले 6-8 महीने पहले, अगले 4 महीने में 4 शोरूम खोल रहे हैं। वो भी समझ में आया कि बहुत अच्छा काम है। आरकेडेफ ग्रुप इस वक्त 3 चैनल, नेशनल चैनल चलाता है। अगले 3 महीने में 3 नेशनल चैनल और आ रहे हैं, मराठी, गुजराती और श्री सनातन। ये सब आपकी ताकत बन के रहेंगे। उस चैनल का खास बात यह है कि नो नेगेटिव न्यूज चैनल। हम किसी के बारे में नेगेटिव न्यूज नहीं देते, पॉजिटिव न्यूज देते हैं और पॉजिटिव साथ लेके चलते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा डॉक्टर भरत सिंह जी से, आपको सबको आशीर्वाद दे, ब्लेसिंग दे और इस व्हाइट कोट सेरेमनी का उद्घाटन करें। Thank you so much, sir. Now we'd like to call upon stage the man of our chief guest, respected Dr. Bharat Sharan Singh sir, the chairman of Madhya Pradesh Private University Regulatory Commission, to guide us with his few wise words. मंच पर उपस्थित डॉक्टर सुनील कपूर जी, डॉक्टर गुप्ता जी, डॉक्टर गाडगे जी, आरकेडीएफ विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर VK अग्रवाल जी, यहाँ पर उपस्थित SRK यूनिवर्सिटी के सभी सम्मानीय प्राध्यापक गण, डॉक्टर गण, विद्यार्थियों एवं विद्यार्थियों के अभिभावक, मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में हमारे लड़के भी हैं, हमारी लड़कियां भी हैं और अच्छी संख्या में आप लोग इस आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेकर के भविष्य में डॉक्टर बनने की प्रारंभिक प्रक्रिया में आ चुके हैं। निश्चित है कि यहाँ से आपको डॉक्टर बनकर के ही जाना है। अभी हमने गाडगे जी को सुना,
उनके पूर्व समैया जी को भी सुना और अभी डॉक्टर कपूर साहब को भी सुना। डॉक्टर कपूर साहब वैसे तो लोग बाग मोटिवेशन के बारे में बताते हैं, लेकिन यहाँ जो बताया गया वो बताया नहीं गया, करके दिखाया गया। और डॉक्टर सुनील कपूर इसके साक्षात उदाहरण हैं। कोई भी ज्ञान जो साधन संपन्न व्यक्ति को मिलता है उससे कहीं ज्यादा अभाव में रहने वाला भी प्राप्त कर लेता है। उदाहरण के लिए एक तरफ अर्जुन और एक तरफ एकलव्य। अर्जुन कहा चक्रवर्ती सम्राट कौरव पांडवों के पुत्र, जिनके सामने द्रोणाचार्य जैसे महान शिक्षक जो उनको पढ़ा रहे थे। एक तरफ एकलव्य, जिनको पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक नहीं था, वह केवल द्रोणाचार्य की मूर्ति की कल्पना के आधार पर ही शिक्षा प्राप्त किया। लेकिन जैसे धनुर्धर अर्जुन हुए वैसे धनुर्धर एकलव्य भी हुए, एक अभाव में और एक साधन संपन्न। कुल मिलाकर के जो प्रतिभा है, ज्ञान है, वह अपने सामर्थ्य और सक्षम होने का एक प्रतीक होता है। वैसे तो कहा जाए इधर राम और लक्ष्मण, उधर लौकुश तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही पैदा हुए, अभाव में ही रहे। लेकिन एक समय जब आता है ये लौकुश बालक अपने पिताजी और चाचा लक्ष्मण जी के सामने बड़ी ताकत के साथ खड़े हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो प्रतिभा है, अपनी बुद्धि है, अपना काम करती है। यहाँ व्हाइट कोट सेरेमनी का यह अवसर है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, कोट एक प्रकार से कपड़ा है, वस्त्र है, लेकिन जिस प्रकार से पोजीशन के आधार पर किसी भी कार्य का महत्व कम और ज्यादा होता है,